Assalamu alaikum everyone. My name is Rubisa Irfan and my teammate is Neha Ramzani, and we are presenting our project Studies Fair Cafe. Our, our agenda to make this project is that Studies Fair Cafe is a smart web-based platform that combines a peaceful study environment with modern technology and cafe services. Main goal of our project is to help students with their study focuses, improve their productivity, and make their learning more comfortable and organized. The problem statement of our cafe is that, especially in our city like Karachi, many students face difficulty finding a quiet and distraction-free place for study. But एक होम एनवायरनमेंट या पब्लिक प्लेस में यूजुअली नॉइस होती है जिस वजह से स्टूडेंट्स प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते। इसके साथ ही स्टूडेंट्स स्टडी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर पाते और उनके पास कोई स्मार्ट स्टडी बेस्ड सिस्टम नहीं है जो उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे। एंड अ फोर्थ पॉइंट इज़ दैट स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं कर पाते। ड्यू टू दिस रीजंस वी हैव टू मेक दिस प्रोजेक्ट स्टडीज फेयर कैफ़े ताकि कंसंट्रेशन और ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की अफेक्ट ना हो और उनको एक पीसफुल स्टडी environment मिल सके। Proposed solution, which solution we made according to this problem is that कि एक स्मार्ट स्टडी प्लेटफॉर्म को बनाना जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपने पीसफुल स्टडी environment के साथ अपनी मॉडर्न प्रोडक्टिविटी टूल्स के साथ स्टडी कर सकें। स्टूडेंट जो है वो रियल टाइम में सीट बुकिंग कर सके और अपनी स्टडी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। एक टाइमर है जिसके थ्रू स्टूडेंट जो है वो अपने स्टडी सेशन को मेंटेन कर सके। इसके अलावा यहाँ पर एक फ़ीचर भी है पार्टनर फाइंडर का, जिसके ज़रिए से स्टूडेंट जो है वो एक अच्छे पार्टनर के साथ कनेक्ट होकर कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में स्टडी कर सकते हैं और फोकस स्टडी एनवायरनमेंट। कैफ़े में जिस तरह से अब स्टडी के साथ साथ रिफ़्रेशमेंट्स की भी नीड होती है स्टूडेंट्स को, तो रिफ़्रेशमेंट भी अवेलेबल है जिसके ज़रिए से स्टूडेंट जो है वो अपने लॉन्ग स्टडी सेशंस को कंफर्टेबली कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। We move forward to the practical demo of this. Our project contains two panels. One is admin panel and the other side is user panel. In admin panel, if we log in into admin panel, admin has all the access of anything. Like admin can manage seats, admin can view bookings, admin can see who are logged in the website, admin can enter the menu, delete the menu. Here we go. Admin can see who are the partner up with each other. Admin can see the analytical progress of students. Admin can add resources. Admin can see the feedback of all the students or anyone who entered in a cafe who reserved a seat. Admin can manage the orders. Admin can see the settings of the website like who's admin, who wants to be the admin. Admin can change anyone. The security system, there is the security system of our project. Like we have a complete secure system of this, that if anyone attempt a suspicious login, admin can delete that user. And here's the login activity according to the time and date, then when admin login, when user login, and when any other user login and what users are doing. Admin can see all activity of every users. And if you move forward to the settings, admin can change the uh, admin name. Admin can access to anyone to be the admin. Admin can change the password. Admin can add new admin too. And we move forward to the seat management. In the seat management, admin can add seats, like if I'm adding A9 seat, a quad zone seat. If I'm adding it add seat, then it should be added. It's a proper CRUD based system where admin can add seats, and there is the live counter that how many seats were added in the project. And then it's all the fresh seats which were shown below. Like admin can edit this book seat to the available version, that this is book, but if admin can want, it can be available like this. But if I can move forward to the backward, and go to the dashboard. And now, if you move forward to the cafe menu, here's the cafe menu. A whole cafe menu was managed by admin.
right here, whole categories menus was managed by admin. Admin can insert any menu, like admin can insert anything in any category, like I'm adding any product to show you that how admin can edit it. There you go, that admin add the menu item, and also admin can edit them from here. If admin want to edit it, if admin want to increase the price of it, admin can increase, admin can change the picture, anything which admin want to do. There is, you go that menu updated successfully. If admin wants to delete this, admin can also delete this. It can be deleted from here. It's a proper CRUD based system. Like if admin want to search anything, like if I want to search Lotus, then admin can search it from here, and it will be shown right here. That Lotus shade, Lotus frame, Lotus, all the things which admin can search. Search bar is working, admin can see from here. Now, if we move forward to the users, that how many users are logged in the website, so admin can see all users. If admin see any suspicious user, admin can delete the user from right here. If I has to delete this user, admin can delete it. And admin also can search every user if admin want to, like this, a search bar. A search bar is properly working. If admin want to delete this user, admin can delete. If admin want to delete this user, admin can delete it. Admin is this user. If we move forward to the other feature is booking, that how many persons book their seat, how users book their seat. There's all the seat management system, like the person who booked their seat, admin can see it from there. Admin can admin can update their seat, admin can delete their seat. If I deleted this person's seat, this reservation got deleted. The total reservation counter. Then move forward to the partners. Admin can see the partner who is partnered up with each other. Analytic, a student analytic, that how many users are logging in this, how many users made their study profiles, how many users completed their task, what study hours over all of the website, what is the highest level of streaks users can make, the highest streak and the top student who are making streaks through the study profile, that this person has two tasks and there's level one. The top performer is Anaya because she has completed two tasks, rather everyone has completed only one task. If we move forward to the resources, admin can, as you know that it is a complete study based platform, that admin can add any resources like any PDF, any notes if admin wants to add, and user can directly download it by the link. Admin can enter any resources from right here. It's all working. Admin can delete it from right here. Move forward. There's a feedback. Feedback is connected with the contact page. From where users can fill the feedback which they feel according to the website. And there you go, all go that the feedback comes from the users. And if we can move forward to orders, that how many orders are pending, how many orders are completed. If if this order could complete, then admin changes the status to completed and the admin revenue increases it. If I complete this order, then you can see here that revenue got increased. The total orders, pending orders, all the information which admin have all the information. If we can view from here, admin can cancel the order from right here. If admin want to come see the clear picture, he can see from here or she can see from here. If we back to order management, then you can see that how revenue increases.
Then now move forward to the security system. A suspicious user attempt. If admin wants to delete anyone, admin can delete. And there is the access of user panel from where admin can go to the user panel. Now, if we move forward to the user panel, we have to register. User has to register first that what's the name of user, what's the last name, user's Gmail, user's contact, password, and what's his profession. Is she or he is a student or job person or businessman? That user has to register herself. The registration got successful. Then user has to enter their email, password, and through they can log in. This is a complete homepage of our project. This is the homepage of our project. The website has to be interactive so that user can attract from our websites and they can book their spots and they can enjoy their meal with the study session, with the focus study session. यहाँ पर एक जो है वो Q&A सेशन भी दिया हुआ है लाइक Q&A सेशन लाइक FAQ क्वेश्चंस कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वेबसाइट के बारे में तो वो यहाँ से जो है वो उन जो पॉपुलर क्वेश्चंस है मैनी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस जो हर यूज़र का जो है वो क्वेश्चन हो सकता है वो हमने यहाँ पर अपने होम पेज में मेंशन किया हुआ है ताकि जो है वो यूज़र्स को आसानी हो जाए देखने में और अपनी सीट बुकिंग के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे बताया गया है कि आपको रिजर्वेशन किस तरह से करानी है, इसके स्टेप्स बताए गए हैं। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि हमारे आगे के जो है वो सेशंस क्या क्या होंगे स्टडी कैफ़े के अंदर। यहाँ पे एक ब्रीफ पिक्चर ग्रिड दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो मेंबरशिप प्लान दिया हुआ है। इफ फ्यूचर इंक्लूड द मेंबरशिप फीचर देन देयर इज और यहाँ पे जो है वो हमारी सीट के बारे में दिया हुआ है कि कितने टाइप्स की सीट्स है और यूज़र किस तरह से सीट बुकिंग करवा सकते हैं। नाउ द about page about this is a complete view of our about page, a complete user interactive website, story of our cafe, that how we started it, branches of our cafe, our achievements, and for the user that why she or he has to choose study sphere, some reviews from our community which helps the users to sign up in our website and book their reservation, our journey from where we started, from where our first branch gone, and how many students are logged in our website, what our menu is, who our teammate is, me and my teammate, and the contact page. If we move forward to the menu, here you know that we have 5 menu pages, 5 categories of menu, and our menu page is also user interactive that can interact user to order anything which she or he wants to. So if we can explore menu, we can explore it from here. If I want to search any specific thing, I can search it from here. If I type banana bread, I can search it from right here and it will become, if I search banana bread, then here you go, there's banana bread. If I want it to add to cart, I can add it. If I want another thing to add, I can go here, right here. मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ, मल्टीपल चीज़ ऐड कर सकता है यूज़र, लाइक इफ आई वांट टू ऐड दिस देन हियर यू गो दैट माई टू थिंग्स आर प्रेजेंट राइट हियर। यूज़र जो है वो इसको इंक्रीज़ कर सकता है, उसको क्वांटिटी बढ़ानी हो क्वांटिटी कम करनी हो, देन हियर द प्रोसीड टू चेकआउट बटन, you have to mention your phone number, you have to give the delivery address, your payment method, and then user has to place the order. If the order place, he or she can see the details from here that how much grand total, how much bill does she or he has to pay. It's 5 menu pages. If we can go to the my orders page, यहाँ पर जो है वो यूज़र के बारे में बताया जाएगा कि यूज़र ने आज तक कितने ऑर्डर्स किए हुए हैं, टोटल ऑर्डर्स जो उसने वेबसाइट में आज तक किए हुए होंगे।
वो सारे ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम अपनी स्टडी स्पेयर कैफ़े के फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक स्टडी प्रोफाइल है जो यूज़र जो है वो अपनी स्टडी, यहाँ पर जो है वो यूज़र जो है वो अपनी स्टडी प्रोफाइल बनाएगा। अगर ये यूज़र जो है वो अपनी स्टडी प्रोफाइल अपनी रिजर्वेशन के मुताबिक बनाएगा, जो उसका रिजर्वेशन टाइम है उसके मुताबिक जो है वो यूज़र अपनी स्टडी प्रोफाइल बनाएगा, ताकि वो अपना एक पार्टनर फाइंड कर सके जिसके साथ वो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में स्टडी कर सके, अगर वो करना चाहता है तो। यहाँ पर वो अपनी प्रोफाइल सेव करेगा तो उसको खुद ही जो है वो AI जनरेटेड फीचर्स जो है वो शो हो जाएंगे। दिस इज द AI फीचर ऑफ आवर वेबसाइट। यहाँ पे AI के थ्रू जो है वो यूज़र को उसका पार्टनर फाइंड हो जाएगा, वो यहाँ से अपने पार्टनर को जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है इफ द यूज़र वांट्स। अब अगर इसका पार्टनर जो है वो 45% मैचेस के साथ कर रहा है, इफ ही और शी वांट्स टू सेंड रिक्वेस्ट, he she can, if I want to send, अगर ये सेंड करता है, ये जो है वो रिक्वेस्ट चली गई है हिबा के पास। एंड इफ आई मूव फॉरवर्ड टू द, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ हिबा के यूज़र अकाउंट पर, ये हिबा का यूज़र अकाउंट है, यहाँ पर मैं जाती हूँ, इसके जो है वो पार्टनर रिक्वेस्ट में अगर मैं जाऊँगी तो यहाँ पर जोया की रिक्वेस्ट आई हुई है जिसको मैंने अभी जिसने रिक्वेस्ट सेंड की, अगर मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ हिबा के अकाउंट से तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी और ये अब पार्टनर अप हो गई, तो फिर माई पार्टनर्स पे इसके साथ जोया जो है वो पार्टनर में शो होगी। अब ये यहाँ से इसके साथ चैट कर सकती है, ये लाइव चैट ऑप्शन है जो कि यूजर्स को दिया गया है। अगर मैं इसको वर्किंग फ्रॉम होम का मैसेज करती हूँ तो ये उसके पास जाएगा। अगर हम जोया के लॉगिन पर जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जोया के लॉगिन पर जो है वो माई पार्टनर्स में हिबा की चैट आई है। अब जोया से जो भी रिप्लाई करना चाहे वो यहाँ से उसे रिप्लाई कर सकती है, और जब हम हिबा के पास जाएंगे, हिबा के अकाउंट में देखेंगे तो यहाँ पे जोया की जो है वो चैट आई है। मतलब ये एक लाइव शेयर फीचर है जो हमारी वेबसाइट में है, जिसके ज़रिए से यूज़र एक दूसरे से पार्टनर अप करके कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में स्टडी कर सकते हैं, जिसके लिए उनको प्रॉपर फोकस और पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब हमारे कैफे का जो दूसरा मेन फीचर है प्रोग्रेस ट्रैकिंग, यूज़र जो है वो अपनी प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर सकता है। एज यू सी कि यहाँ पे अभी सब कुछ जीरो है, इसका लेवल 1 है क्योंकि इसने पहले भी प्रोग्रेस ऐड की हुई है। अगर हम यहाँ पे ऐड प्रोग्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें स्टडी आवर्स इंक्रीज हो गए, स्ट्रीक इंक्रीज हो गई, लेकिन टास्क इंक्रीज नहीं हुआ। टास्क इसलिए इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि इसने यहाँ पे कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं किया। जब ये माई टास्क के पेज पर जाएगी, अपना एक टास्क ऐड करेगी, यहाँ से जब वो टास्क ऐड करेगी और फिर जब वो अपने टास्क को कंप्लीट करेगी तो फिर वो अपने प्रोग्रेस ट्रैकिंग पे जाएगी, तो प्रोग्रेस ट्रैकर जो है वो उसके टास्क को ट्रैक करके यहाँ पे उसको इंक्रीज कर देगा। और ये लेवल 1 इसलिए है क्योंकि जब तक ये 5 टास्क कंप्लीट नहीं करेगी लेवल 1 अबव नहीं जाएगी। जब 5 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे लेवल 1 अबव जाएगी और फिर उसके बाद लेवल 1 और 1 अबव जाती रहेगी 5 टास्क के गैप से। ये हमारा दूसरा मेन फीचर था। उसके बाद अगर हम रिजर्वेशन पर जाते हैं कि यूज़र जो है वो रिजर्वेशन किस तरह से करा सकता है अपनी, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 6 सीट्स अवेलेबल है राइट नाउ। यूज़र को पता चल रहा है ये अगर ये जो है वो क्वाइट जोन एनवायरनमेंट में स्टडी करना चाहती है, यहाँ से रिजर्व पे जाएगी, फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ से वो अपना पूरा नाम एंटर करेगी, अपनी जीमेल डालेगी, नंबर ऑफ पेपर डालेगी, क्योंकि इसने हिबा के साथ पार्टनर अप किया हुआ है तो ये 2 पेपर्स के लिए टाइम स्लॉट बुक करेगी। ये यहाँ से मैसेज करेगी, कोई भी मैसेज अगर वो लिखना चाहे, ये रिजर्व करेंगी और यहाँ पे इसके पास एक रिसिप्ट शो हो जाएगी जिसके ज़रिए से जो है वो इसको पता चल जाएगा कि उसकी बुकिंग कब की है। उससे चाहिए कि वो इस रिसिप्ट की पिक्चर लेनी पड़ेगी और वो कैफ़े में आके दिखाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि कैफ़े को पता चल जाएगा कि इसकी बुकिंग है और वो अपनी जो है वो सीट अवेल कर सकती है। अब यहाँ पे जो है वो एक सीट जो है बुक कर दी तो यहाँ पे 5 सीट्स हो गई, ये खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। ये टोटली वर्किंग सिस्टम है जो अपने चीज़ों को खुद ही रिड्यूस करता जाएगा। एक एक सीट बुकड हो जाएगी, सीट यहाँ से कम होती जाएगी और फिर एडमिन इस चीज़ को जो बुकड होगी और जो सीट अवेल कर चुका होगा एडमिन उसको जो है वो अवेलेबल कर देगा। ये रिसोर्सेज है जो यहाँ से एडमिन इंसर्ट कर रहा था, ये रिसोर्सेज जो है वो यहाँ से यूज़र देख सकता है। अगर ये यहाँ से डाउनलोड करना चाहे तो ये यहाँ से इस रिसोर्स के डायरेक्ट लिंक पर चली जाएगी और ये यहाँ से डाउनलोड कर लेगी। इट्स अ स्टडी फीचर ऑफ आवर प्रोजेक्ट। अगर हम कॉन्टैक्ट के पेज पर जाते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज है जिसके ज़रिए से यूज़र हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। वह यहाँ से कुछ भी जो है वो अपने नाम के साथ फिल करके एडमिन को जो है वो अगर जनरल फीडबैक देना चाहती है कोई भी चीज़ अगर उसको फीडबैक में देनी है, वो यहाँ से फीडबैक देगी और वहाँ से जो है वो एडमिन पैनल में फीडबैक सेव हो जाएगा और डेटाबेस में फीडबैक सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं कि आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैप दिया हुआ है ताकि जो है वो इजीली जो है वो यूज़र हमारे कैफ़े में आ सके।
यहाँ पे भी क्वेश्चन एंड आंसर का पेजेस दिया हुआ है जहाँ से यूजर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर देख सकता है। अगर उसे कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ से, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो यूजर देख सकता है, जो कि एक वेबसाइट में होना जरूरी है ताकि यूजर्स को जो है वो आसानी हो जाए। ये हमारा कंप्लीट यूजर पैनल था। अब हम जो है वो मार्केट स्ट्रेटेजी और इसकी ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं। अब अगर हम प्रोजेक्ट की जो है वो मार्केट वैल्यू और पोटेंशियल इम्पैक्ट के बारे में बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टडी स्फेयर कैफ़े का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट पोटेंशियल है, बिकॉज द डिमांड फॉर स्मार्ट लर्निंग स्पेसेस जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट को एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए। इस वजह से इस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी डे बाई डे। ये सिस्टम एक ट्रेडिशनल कैफ़े है और एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर रहा है। स्मार्ट सीट बुकिंग हो रही है, प्रोडक्टिविटी टूल्स प्रोवाइड हो रहा है, पार्टनर फाइंडर है, रियल टाइम इंटरेक्शन हो रही है, स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया जा रहा है। तो इसकी मार्केट वैल्यू या पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है वो यूजर्स पे डे बाय डे इंक्रीज होता रहेगा। ये सिस्टम जो है वो यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज और को वर्किंग स्पेसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है वो इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उनके साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को एजुकेशनल और कमर्शियल दोनों पर्सपेक्टिव से वैल्यूएबल इनकम या वैल्यूएबल ग्रोथ प्रोवाइड हो सकती है। और इस प्रोजेक्ट को डे बाय डे इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू, इसका इम्पैक्ट को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर हम इसकी फ्यूचर ग्रोथ और स्केलेबिलिटी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज़ डिज़ाइन विद फ्यूचर स्केलेबिलिटी। लाइक इस प्रोजेक्ट को हमने फ्यूचर स्केलेबिलिटी के थ्रू ही डिज़ाइन किया है। शुरू में ये इम्प्लीमेंट होगा एक सिंगल कैफ़े के तहत, लेकिन आगे जाकर इसकी ब्रांचेस को एक्सपेंड किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस के तहत एक्सपेंड किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अराउंड इस कैफ़े के ब्रांचेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। फ्यूचर इन्हेंसमेंट इसके अंदर हो सकती है, जैसे कि एआई बेस्ड स्टडी रिकमेंडेशंस हो सकती हैं कि किस टाइप की स्टडी करनी चाहिए, एआई बेस्ड स्केड्यूल मिल सकते हैं, पर्सनलाइज रिपोर्ट्स हो सकती है, हर स्टूडेंट की अपनी पर्सनलाइज रिपोर्ट के साथ साथ क्यूआर चेक इन भी हो सकता है, एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल एप्लीकेशन किसी के भी थ्रू। प्रीमियम मेंबरशिप भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन मेंबरशिप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कैफ़े कोलाब्रेशन हो सकती हैं, जिसके ज़रिए से हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अगर हम ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस स्टडी स्फेयर कैफ़े के पास एक पोटेंशियल है एक कंप्लीट स्मार्ट एडटेक सॉल्यूशन बनने के लिए, जो कि फ्यूचर में स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, जिसके ज़रिए से इस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट्स में, जॉब पर्सन्स में, बिजनेस मैन में बहुत ज़्यादा माना जाएगा। जब इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा एआई फीचर्स इंक्लूड किए जाएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ या बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएगी। And there is a technology which I use in this project: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, and for the backend, MySQL and PHP. Uh, and that's all for my project, Studies Fair Cafe. Thank you so much for this project.